N2 must be greater than N1. The number of atom at the upper level must be greater than N1. Without this condition, we can never get lasing in the output. Okay, so this is very, very important. I will let you know later. Pumping and its type. Now, how will you excite the atom, or how will you send the atom from ground state to upper level? Okay, so there are some pumping mechanism are used to excite the electrons from upper level to from lower level to upper level. ठीक है, so मेरी आवाज आ रहा है सागर आ सर? रही है, no problem. Okay. So the process of achieving population inversion in active system is known as pumping of atoms, right? So to achieve the population inversion, because without population inversion, lasing is not possible. So for that, we need to transfer atoms from ground state to upper level. For that, we would have to use some pumping, the pumping mechanism. So there are the different types of pumping mechanism are used for different types of laser. So there are mainly 4 types of pumping are used. First, optical pumping. Second one is electrical discharge. Third one is direct conversion, and fourth one is chemical reaction. So these pumping have been are being used according to different laser. Like optical pumping is being used in ruby laser, electrical discharge in helium neon, direct conversion for semiconductor laser, and chemical reaction in carbon dioxide laser. So you guys might have studied about ruby laser in your 12th class, because there we use some ruby crystal, right? And we flash the light, and the atoms get excited and go to upper level and make downward transition, right? So in case of ruby laser, actually the disadvantage is we get the pulse laser, and there is a problem of overheating, because continue you flash the lamp to excite the atom from lower level to upper level. Okay, so this is the actually thing associated with the ruby laser. In case of helium neon laser, we we put some 2 electrodes between the mixture of helium and neon gas, and we pass some electrical discharge, right? So we get continuous laser beam in case of helium neon laser, and this was uh, invented in 1961, just after 1 year of ruby laser. The first gas laser, the first laser was ruby laser, which is solid state based material. Okay, and the second one after 1 year, helium neon laser, which was a mixture of helium and neon gas. Now third one is डायरेक्ट कन्वर्जन. ये जो आपका डायरेक्ट कन्वर्जन बेस पे जो आपका लाइट है, जिसमें आपका डायरेक्ट आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा. ये जो सेमीकंडक्टर लेजर है, ये आपका लेजर आपने मार्केट पे देखा होगा, छोटा सा जो कल मैंने बात की थी कि एक लेजर पॉइंटर होता है, या उसके अंदर आपका जो छोटा वाला चॉक साइज का लेजर सेमी लेजर होता है, उसको सेमीकंडक्टर लेजर बोलते हैं. वही आपका सेमीकंडक्टर लेजर होता है, राइट? और आपका फोर्थ वाला होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर. कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से बेसिकली इसमें पावर भी अलग अलग होता है, ठीक है ना? सो पावर आल्सो डिफर फ्रॉम लेजर टू लेजर. Okay, so the next one is main components of laser. So to build any laser, we need some components. Without its component, we can never make laser. So what are the main components of laser? So there are basically 3 main components of laser. First is the active medium, second one is energy source, and third one is optical resonator, right? So because we are making laser is a basically device, right? So to make laser device, we need some stuffs, right? First, like you need some active medium, energy source, optical resonator. So what is the active medium, right? आपको डिफरेंट मीडियम के हिसाब से आपको लेजर भी आउटपुट में अलग मिलता है, कहीं पल्स में मिलता है, कहीं आपको कंटिन्यूस भी मिलता है, ठीक है ना? तो एक्टिव मीडियम वह मीडियम होता है जहाँ पे आपको, जिसके कारण आपको लाइट बाहर मिलेगी, जिससे आपको लेजर बन के बाहर निकलेगी, ठीक है? जिसके अंदर आपके क्या होंगे, एटम्स होंगे. एटम्स होंगे मतलब क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? सो एक्टिव मीडियम. तो अब यहाँ पे हम किसी मीडियम के बारे में बात करें, तो मीडियम वो मीडियम होता है कि व्हेन द एक्टिव मीडियम इज एक्साइटेड, जब उसको आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, उसके एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और आपको क्या करेंगे, वो आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन जो लेजर के लिए चाहिए वो फुलफिल करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? सो द एक्टिव मीडियम मे बी ए सॉलिड, liquid, or gas. As I told you, in ruby laser solid material are being used. In case of gas laser, helium neon laser, helium and mixture of helium and neon gas are being used. So depending on the active medium, we have different types of lasers, right? So there are basically main 3: solid state, liquid, and gas lasers. Okay, so active medium, you can see in the left bottom picture, there is a picture. Can you see the picture? Can you see the picture? Yes, sir.
Okay, so you can see here in the center there is a, I have written here laser medium, right? So medium is very very important, and for the next thing is you need to excite the electron. So for that you need energy source, right? So the energy source rise the atom to excited state. So we have a study about two, and the third one is optical resonator. It provides basically optical feedback, right? So this basically helps to involve another the items which are already inside the medium but which they have not participated in lasing. Okay, so it provide optical feedback. So the optical resonator consists of two mirrors जो फेस करते हैं एक दूसरे को each other फेस करते हैं, and the in which the first mirror is 100% reflected. I'm denoting here with the full mirror. I'm written here full mirror for that, and the is completely polished, right? And I will let you know what is the meaning of this. Why do we need to polish is completely polished? The function of the optical resonator is to increase the intensity of laser beam. बिकॉज जब आपका कोई एटम ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाएगा तो जब वो डाउनवर्ड ट्रांजिशन करेगा तो जब वो फोटॉन्स निकले हैं वो फोटॉन्स उस मीडियम के दूसरे एटम से टकराएंगे और उनको भी बोलेंगे कि तुम भी फोटॉन्स को एमिट करो. सो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कंटिन्यू लेजर के अंदर चलते रहता है इस लेजर डिवाइस के अंदर until all the atoms पार्टिसिपेट. जब तक चलते रहता है जब तक सभी एटम उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते और सभी का फेस एक जैसा नहीं हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे हमने फुल मिरर इसलिए लिया है क्योंकि हम क्या करेंगे, पहला वाला मिरर फुल मिरर है, लेफ्ट वाला और राइट वाला हमारा है पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर. सो जैसे ही फोटोन आपका आएगा तो वो सपोज यहाँ से इस राइट वाले मिरर से टकरा के इधर लेफ्ट में जाएगा. ठीक है, तो ये वाला लेफ्ट वाला जो मिरर है वो उसको वापस रिटर्न कर देगा 100%. सपोज 10 photons आर inside the cavity. This whole thing is called optical resonator, or you can say optical cavity. जो आपका होता है optical cavity इसको बोल सकते हो. ठीक है ना. तो जैसे ही मान लो इस लेफ्ट वाले मिरर पे जब फोटॉन्स आकर टकराएंगे, 10 फोटॉन आके टकराए तो वो 10 फोटॉन वापस उसी दिशा में रिटर्न हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस मिरर लेफ्ट वन mirror will never absorb, or it will not absorb any photons. It will reflect all the incident photons, right? So ये 10 फोटॉन को क्या करेगा, रिटर्न करेगा. ठीक है, ये 10 फोटॉन वापस उस मीडियम के एटम से टकराएंगे और दूसरे एटम्स को क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे और उनसे बोलेंगे ये एक्साइटेड स्टेट में भेज के उनसे वापस एमिशन के लिए बोलेंगे. और हमने जो राइट वाला मिरर है सेकंड वाला, इसको हमने पार्शियली रिफ्लेक्टेड बोला है. सपोज लेट्स से कि लेफ्ट वाला 100% है, ये दूसरा वाला कौन सा है, राइट वाला 95% रिफ्लेक्टेड मिरर, ताकि हमको आउटपुट 5% हमने आउटपुट के लिए रख लिया यहाँ पे. ठीक है ना. So the whole thing is called optical cavity, or you can say optical cavity, and this is the optical resonator is a combination of two parallel mirrors, right? So at the initial stage क्या होता है, spontaneous emissions जो होता है वो सभी डायरेक्शन में होता है. ठीक है ना. तो right, so photons that travel in specific direction are selected while others are rejected. So मान लो इसके अंदर 50 फोटोन आपके सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, तो मान लो 10 फोटोन ऐसे हैं जिनका बार बार बाउंस एंड बैक, बार बार उनके रिफ्लेक्शन होने से उनके फेस क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं. तो वही आपस में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और आपको आउटपुट में मिलेगा. तो हम उन्हीं फोटोन्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके फेजेस क्या है, सेम है. ठीक है. ओके, so next slide is about production of laser beam. Production of laser beam. So how does production of laser beam take place in case of laser system? So let's start with the first one. The first, this is the whole, the cylinder is called, this is basically a cylinder where we can say the active medium. Okay, so in case of active medium, there is also one more important thing. We call it active centers, right? Active centers. Let's say a material is having 100 atoms and only 50 atoms are participating. So these 50 atoms we call as active centers, not the 100 पर all the 100 atoms. जो atoms participate करेंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, active centers, right? जैसे अपने पूरे को बोलेंगे अपन active medium, और जो participate कर रहे हैं उसी को बोलेंगे अपन active centers. ओके, सो प्रोडक्शन में मैकेनिज्म में ये होता है कि यहाँ पे आपका एक मिरर है, फर्स्ट वाला जो फुली रिफ्लेक्टिंग है, सेकंड वाला क्या है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, और ये आपका लेजिंग मीडियम है जहाँ पे जो ब्लू कलर की बॉल्स है, दीज आर एटम्स ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम्स. ओके, एंड अब नेक्स्ट हम चलते हैं, पहला वाला हो गया लेजिंग मीडियम एट ग्राउंड स्टेट. ये लेजिंग मीडियम पर ग्राउंड स्टेट में कैसे बैठे रहेंगे ये.
दूसरा होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब अब जो आपके ब्लू कलर की जो एटम्स है वो तो अभी भी क्या है ग्राउंड स्टेट में, बट जो ऊपर ये आपके जो दूसरी कलर की बॉल्स है पर्पल कलर की, ठीक है ना, ये आपके वो एटम से या वो इलेक्ट्रॉन से जो एक्साइटेड स्टेट में जा चुके हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। इन थर्ड स्टेप we talk about the spontaneous emission start of stimulated emission। तो इनिशियली क्या होगा आपका, जैसे ही आपके एटम्स ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाएंगे क्या होंगे वो आफ्टर 10⁻⁻8 सेकंड क्या करेंगे, डाउनवर्ड ट्रांजिशन करेंगे। सो जैसे ही वो डाउनवर्ड ट्रांजिशन करेंगे आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। ये ब्लू कलर के एटम से या जो पर्पल कलर के एटम से आपको एक फोटॉन्स दिख रहा होगा जो दूसरे उस मीडियम के दूसरे एटम से टकराता है येलो कलर के, उसको येलो बोल दिया यहाँ पे, उसको एक्साइट हो गया वो एक तरीके से। ये क्या करेगा, उसको एक फोटोन निकाला और ये क्या करेगा, दूसरा फोटोन निकाला। अब यू कैन सी हियर दीज टू फोटॉन्स आर मेंटेनिंग सेम डायरेक्शन इन सेम फेज। सो यहाँ पे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एज ए बेसिकली बेस मान रहे हैं किसका, स्टिमुलेटेड इमिशन का, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये फोटॉन्स क्या करेंगे, इस मिरर से टकराएंगे और वापस क्या करेगा, देखो ये रिटर्न आ रहा है यहाँ से, आपको चौथा वाला फिगर दिख रहा है। तो हियर स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस स्टार्ट, तो स्टिमुलेटेड इमिशन बिल्डिंग अप, ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। फिर ये जो रिटर्न वाला फोटोन आ रहा है रिटर्न, ये दूसरे एटम से टकराएगा, ठीक है, फिर ये आपके दूसरे दो फोटोन इमिट करेगा, फिर ये फोटॉन्स आपके दूसरे एटम से टकराएंगे एक्साइटेड स्टेट के, ये आपको दूसरे फोटॉन्स देंगे। सो ये प्रोसेस क्या होता है पूरे केविटी के अंदर चलते रहता है और तब तक चलते रहता है जब तक सभी एटम पार्टिसिपेट नहीं कर लेते। नाउ यू कैन सी हियर इन द बॉटम पिक्चर जो 5th नंबर पे है, कोहेरेंट लाइट विद ऑल वेव्स लाइंड अप इन फेज। यू कैन सी हियर यहाँ पे क्या है, सभी जो वेव्स है क्या है वो ने सेम फेज अब मेंटेन कर चुकी है आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो दोनों मिरर से हो रहे हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर इनका क्रेस्ट 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 सबका एक जैसा आ रहा है, इनका ट्रफ 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 सबका एक जैसा आ रहा है, सीट्स सीट्स और गर्द गर्द एक जैसे हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑल ऑफ दम विल इंटरफेयर, मतलब जैसे इंटरफेरेंस होगा, और कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट मींस वी विल गेट हाईली एम्पलीफाइड और बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी, राइट। समझ में आ रहा है इतना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you can see here in the right side, we have denoted here the blue balls is ground state atom, and the purple ball is excited state atom, and the yellow ball one is stimulated emission process, and at the end you will get laser beam, which is highly coherent, right, and highly intense. Okay, so next about is coherence, right? Because we are talking about we are basically our main concern is coherence, क्योंकि लाइट तो हमारा बल्ब से भी निकल रहा है, ट्यूबलाइट से भी निकल रहा है, सन से भी निकल रहा है, बट इज इट रियली कोहेरेंट? तो जो कन्वेंशनल सोर्स है वो कोहेरेंट मेंटेन नहीं करते हैं, दिस आर इनकोहेरेंट, क्योंकि जो एमिशन हो रहा है फोटॉन्स का, जो लाइट निकल रही है वो सभी डायरेक्शन में निकल रही है, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ कोहेरेंस इज, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि मिलिट्री के जो सोल्जर्स होते हैं जब वो एक साथ में उनका पोजीशन भी फिक्स होता है, उनके चलने का डायरेक्शन भी सेम होता है, मतलब क्या है वो कोहेरेंस को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। So two wave source are perfectly coherent if they have constant phase difference and the same frequency। दोनों के बीच में एक phase क्या है, सेम है उनके बीच में, और frequency भी क्या है, सेम है। So coherence is basically you can say ideal property of waves that enables interference। क्योंकि coherence होगा तभी तो वो constructive interference करेंगे और आपको highly intense beam मिलेगा, ठीक है ना। So coherent source are those which emit light waves of same wavelength of frequency and have constant phase difference। Now here you can see in the left bottom there is a picture about coherent laser light, right। यहाँ पे आपका ये वाला पिक्चर आपका क्या है, लेजर है जहाँ से लाइट निकल रहा है। आप देख सकते हो कि ये क्रेस क्रेट सबके जैसे हो रहे हैं, ये ट्रॉफ ट्रॉफ एक जैसे हैं, इनके क्रेस इनके ट्रॉफ, इस तरीके से आपको मिलता है कोहेरेंट लेजर लाइट, ठीक है। इफ आई कंपेयर माई कोहेरेंट लेजर लाइट विद दी कन्वेंशनल और दी कमर्शियल लाइट सोर्स एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, जो आप डेली अपने घर पे भी देखते हो, ठीक है ना। एलईडी आपके घर में हम दीपावली के टाइम पे यूज करते हैं, एलईडी मार्केट में अवेलेबल होता है, सस्ता मिलता है, वो 2-4 रुपए में मिल जाता है आराम से, ठीक है ना, लाइट एमिटिंग डायोड। सो फ्रॉम ये जो लाइट सोर्स है उससे भी क्या होता है, आपको जो लाइट लेजर मिलता है, लाइट मिलता है, वो भी क्या होता है, इनकोहेरेंट इन नेचर होता है। इट इज सिमिलर टू मोरलेस सिमिलर टू जो आपके कन्वेंशनल लाइट सोर्स है। सो ऑर्डिनरी लाइट और लेजर में डिफरेंस है, आपको पता, अब आपको थोड़ा समझ आना चाहिए कि ऑर्डिनरी में मेनी वेवलेंथ होती है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, इनकोहेरेंट होता है, और लेजर में सबसे जो लेजर की ब्यूटी है, जो उसकी खूबी है, जो उसके गुण है, जो उसकी प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, मोनोक्रोमेटिक इन नेचर, सिंगल वेवलेंथ, डायरेक्शनल और कोहेरेंट, ठीक है।
Okay, so based on the types of coherence, okay, but the types of based on the coherence, there are two types of coherence. First is the spatial coherence, right, and the second one is temporal coherence. So spatial coherence basically, first and try to understand with its name itself. Spatial means space, coherence in space. Temporal means time के साथ में उसका coherence maintain हो रहा है कि नहीं. So spatial coherence means it refers to ability of two separate portion of wave to produce interference. Two separate portion of waves, right? तो स्पेशल कोहेरेंस का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है बॉटम में, ठीक है ना. आपने वाईडीएस एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे आपको ये जो सोर्स है, एक पर्पल वाला बॉल है, एक ब्लू वाला है. यहाँ से क्या हो रहा है, दो सोर्सेज दिखा रहा है. यहाँ से पहले से ब्लू कलर ये पर्पल वाला वेव फ्रंट निकल रहा है. पॉइंट सोर्स है, हमेशा वेव जो लाइट का नेचर क्या रहेगा, वेव फ्रंट आपका स्फेरिकल इन नेचर रहेगा. दूसरे वाले से क्या इस तरीके से आ रहा है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, और यू कैन सी द इंटरफेरेंस पैटर्न हियर, राइट. सो एक आपका पर्पल के लिए है और एक ब्लू डॉट्स के लिए. यहाँ पे आपका स्पेस में आपको दिखा रहा है कि इंटरफेरेंस कैसे होगा, ठीक है ना. और टेम्परल कोहेरेंस में क्या हो रहा है, इट इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए बीम टू इंटरफेयर ऑफ अनदर पोर्शन ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना. तो ये आपको उसकी दूसरे उसके बारे में बताता है कि टू इंटरफेयर अनदर पोर्शन, जो खुद का दूसरा पोर्शन है उसके बारे में दिखाता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो, ये इस फिगर में जो ऊपर वाला टेम्परल कोहेरेंस है, यहाँ पे पहला वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो दूसरा है, उसका वेवलेंथ क्या लेमड़ा है. दूसरा वाला क्या है, डॉट, ये डेस डेस से यहाँ पे बताया गया है. लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा चेंज इन वेवलेंथ है, डेल्टा लेमड़ा है, ठीक है ना. तो ये होता है आपका, जहां तक वो फेज मेंटेन करता है आपका हो जाएगा ये कोहेरेंस लेंथ. और ये जो केप आया है आपका डेल लेमड़ा, ठीक है ना, ये आया है कि वो डिफरेंट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है या डिफरेंट टाइम से डिले हो रहा है. बेसिकली सेम पोजीशन पर डिफरेंट डिले टाइम से. यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा क्या मिलता है, बैंडविड्थ मिलता है. जनरली लाइट लेजर होता है वो हाईली कोहेरेंट होता है, ठीक है ना. और आपको यदि वो इस टाइप का सोर्स है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ डिले है, तो आपको थोड़ा सा ये इम्प्यूरिटी इसकी शो करेगा बेसिकली, ठीक है ना. नाउ अनलिमिटेड मिनट्स, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, देयर इज नो टाइम लिमिट नाउ. Okay, so this was about the types of coherence, spatial coherence and temporal coherence. Okay, so I believe सबको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है. सभी को आवाज भी आ रही मेरी. Okay, so next about मेन प्रॉपर्टी. नाउ हम इसको कंक्लूड करना चाह रहे हैं एक तरीके से कि क्या क्या इसकी मेन प्रॉपर्टीज है लेजर की. So high degree of coherence. Second one is high directionality, extraordinary monochromaticity, and the fourth one is high intensity. जैसे ये किसी एक लेजर के डिवाइस के अपने आप की खुद की एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना. सो कोहेरेंस मतलब क्या है, वापस से द लाइट वेव्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट सोर्स हैव मेनी वेवलेंथ. ये बेसिकली हम एक इसको कंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें कंपेरिजन है. और आपका जो लेजर होता है, द फोटोन एमिटेड ऑर्डिनरी लाइट सोर्स क्या होता है, आउट ऑफ फेज होते हैं, ठीक है ना. तो ये होता है इनकोहेरेंट इन नेचर होता है. और लेजर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है. सभी क्या होते हैं, लाइट वेव्स ऑफ लेजर लाइट हैव ओनली वन वेवलेंथ, ठीक है. और सभी फोटोन क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, इसलिए क्या होती है, ये कोहेरेंट होती है, ठीक है ना. इसके एप्लीकेशन से हम देखेंगे, बताएंगे आगे भी. हाई हाई डायरेक्शनलिटी मेंटेन करता है लेजर लाइट, नो डाउट. मोनोक्रोमेटिसिटी वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट इट, सिंगल वेवलेंथ वी कैन फाइंड. और हाई इंटेंसिटी, द लेजर लाइट स्प्रेड्स इन ए स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, राइट. तो हाई इंटेंसिटी होता है छोटे से स्मॉल एरिया के अंदर बहुत सारे हजारों लाखों फोटॉन्स आपको छोटे से 1 मिलीमीटर एरिया के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना. तो आपको आप इमेजिन कर सकते हो हाई इंटेंसिटी और स्मॉल रीजन में बहुत सारे आपको आपकी लाइट मिलेगी, ठीक है ना. हेंस ऑल द एनर्जी इज कंसंट्रेटेड ऑन ए नैरो रीजन. ये स्प्रेड नहीं होता है, ये एक ही पॉइंट पे होता है. और इसलिए यदि मैंने बोला आपको, कल बोला था कि आपकी यदि आंखों पे जो लेजर लाइट पड़ेगा, जो बच्चे खेलते हैं, तो उसका इफेक्ट आपको आंख की खराब कर देगा. क्यों, क्योंकि इसके स्मॉल नैरो रीजन में बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं. लाइट स्प्रेड होती है स्मॉल रीजन में, बड़े रीजन में नहीं होती है, ठीक है. सो इस चीज को ध्यान रखें, बच्चों को मना करें और ना खुद भी इसे ना प्ले करें, ठीक है ना. देयरफॉर लेजर लाइट हैज ग्रेटर इंटेंसिटी देन द ऑर्डिनरी लाइट. Okay, so next is about types of laser. So types of laser. So lasers are classified into 4 types of laser. Dr. Arpana Agrawal will talk about it later. From today, from tomorrow, she will talk about on different types of laser system. So I'm not gonna going in detail in it. So solid state laser, ruby laser होता है, जो पहला solid state laser बना था 1960 में, ठीक है ना.
दूसरा बना था गैस लेजर, जो गैस के मिक्सचर को लेकर बनाया गया था। ये मीडियम है बेसिकली। रूबी इज ए क्रिस्टल, ठीक है, रूबी इज ए क्रिस्टल, ठीक है। Cr2O3 उसमें एल्यूमिनियम का डोपिंग होता है, ठीक है। Al2O3 उसमें भी एल्यूमिनियम को रिप्लेस करते हैं क्रोमियम से। तो इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर, लेजिंग इज पॉसिबल ड्यू टू क्रोमियम आयन। हीलियम इयन लेजर में लेजिंग इज पॉसिबल ड्यू टू नियॉन आयन, ठीक है ना। सो नियॉन इज द एक्टिव सेंटर, नियॉन के कारण आपको लेजिंग मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से लिक्विड लेजर आपका डाई होता है, सेमीकंडक्टर जो आप देखते हो। ओके, सो 3 and 4 लेवल्स, एनर्जी लेवल डायग्राम इसको बोलते हैं। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि इज इट पॉसिबल टू गेट लेसिंग फ्रॉम टू एनर्जी लेवल्स। Is it possible to get energy from lasing from two energy level? It is not possible, right? Why? Because we do not get population inversion condition. We do not fulfill the condition of population inversion in case of two energy level. Okay, so lasing is not possible in case of two level energy system, ठीक है। इसीलिए जो आपका हमेशा लेजिंग आपका जो लेजर बना है वो 3 एनर्जी लेवल को लेके बना है या 4 को लेके बना हुआ है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। सो लेट्स से कि आपका जो 3 लेवल है वो ये लेफ्ट साइड में है, और ऊपर वाला ये राइट वाला कौन सा है आपका 4 है। यहाँ से जो आपके लेवल 1 में जो एटम्स है ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए हैं, इनको हमने एनर्जी दिया, कहाँ भेजा, इनको ऊपर भेजा। So now the atoms are at the upper level or excited, highly excited state. Okay, so atom won't stay here for long time. They will make downward transition from upper level to lower level. Okay, so this state is called metastable state. So what do you mean by metastable state? So the metastable state is little bit, we can say, as I told you yesterday, the ordinary energy level is having lifetime of around 10 to the power minus 8 second, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेटा स्टेबल स्टेट का मतलब ये है कि इसका जो लाइफ टाइम होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब ये क्या, यहाँ पे क्या करेगा, एटम आपका थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुकेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एटम आपका ऊपर से नीचे आएगा, और उसके बाद क्या करेगा, ये डाउनवर्ड ट्रांजिशन करेगा, फास्ट ट्रांजिशन करेगा, ठीक है ना। और आपके एटम क्या होंगे यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से 50 एटम गए, ठीक है। 50 में यहाँ से मान लो आपके 40 एटम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो 40 एटम तो यहाँ हो गए, यहाँ तो ऑलरेडी कम हो गए नीचे। तो ये एटम क्या करेंगे, 40 यहाँ से तो 20 यहाँ बचेंगे, और 20 वापस क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो दोनों में क्या हो गया, वापस बराबर एटम्स हो गए। तो बराबर एटम्स हो गए मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। आपको वापस से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, एटम्स को नीचे से ऊपर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट लेजर में जो पहली लेजर बनी थी, ठीक है, उसमें ये 3 लेवल यूज किया था, और आपको ये पल्स की फॉर्म में मिलता है, क्योंकि हर बार आपको क्या करना पड़ता है, एटम्स को पंप करना पड़ता है टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन, एंड लेजिंग इट नॉट पॉसिबल विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब यहाँ पे आता है आपका ये 4 लेवल एनर्जी लेवल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि एटम आपके ग्राउंड स्टेट से ऊपर गए, हाईली एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ एटम आपके फास्ट डाउनवर्ड ट्रांजिशन करेंगे इस लेवल पे, ये होता है मेटास्टेबल स्टेट। इसका जो लाइफ टाइम होता है अराउंड 10 टू द पावर -6 सेकेंड, और कहीं का 10 टू पावर -3 सेकेंड भी होता है, ठीक है। और यहाँ से जब एटम आपके इकट्ठे होंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन मिलेगी, सो दे विल मेक डाउनवर्ड ट्रांजिशन टू हियर, राइट। सो and afterward this is the lower metastable state, so we are having two metastable state, first higher and second one is lower. Okay, so we will get condition of population inversion between these two levels. Okay, and once atom reaches here, they will make downward transition after collision with the walls of the cavity. तो ये आपके एटम्स कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। मतलब आपका जो पल्स लेजर का सबसे बड़ा जो ओवरकम था वो यही था। यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉपुलेशन इन्वर्जन आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू आपके क्या होते हैं, एटम पंप नीचे से ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन मिलती रहती है। ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे यहाँ पे नहीं आते हैं, ठीक है। ये यहाँ से कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, और हमारा कंटिन्यू क्या होता है, ये प्रोसेस चलते रहता है। एटम नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर यहाँ पे आया, और डाउनवर्ड ट्रांजिशन चलते रहता है। सो इन गैस लेजर 4 एनर्जी लेवल आपका ये लेवल यूज किया जाता है, जिससे आपको क्या मिलता है, कंटिन्यूअस लेजर बीम आउटपुट में मिलता है, ठीक है ना। तो दिस वाज अबाउट 3 and 4 एनर्जी लेवल डायग्राम। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ कैन वी गेट मेटास्टेबल स्टेट, how can we get metastable, how can we how do we insert this metastable state inside the laser medium. Okay, so this metastable state can be achieved, right? This metastable state can be achieved with doping. If you do some doping,
डोपिंग में आपको पता होना कि हम जब मटेरियल्स को जो मिक्स करते हैं, ठीक है, तो जो केमिकल्स को आप जिससे मिक्स करोगे या फिर जो मटेरियल्स को आप मिक्स करोगे, तो यहाँ पे आप किसी भी मटेरियल में जिसके आप लेजर बना रहे हो, यदि आपने कोई दूसरा उसमें मटेरियल इंसर्ट किया तो वहाँ से आपको मेटास्टेबल स्टेट मिलता है। तो मेटास्टेबल स्टेट आपको डोपिंग से मिलता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन का भी आता है। तो रिमेंबर वन थिंग, फॉर अचीव टू गेट लेजर इन द आउटपुट वी मस्ट हैव n2 ग्रेटर देन n1, ठीक है ना। तो ये मेटास्टेबल स्टेट आपको डोपिंग से मिलता है, ठीक है। So application of lasers. So lasers are being used in different branches of science due to their narrow bandwidth, क्योंकि वो उसका bandwidth कम होता है, ठीक है ना। यह क्या होता है, narrow bandwidth होता है, और उसका स्प्रेडिंग भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो दिस कैन बी मेड फ्रॉम विजिबल लाइट, इसको आप पॉसिबल है आपका, इसको बना सकते हो आप में विजिबल लाइट से, एक्सरे से, अल्ट्रावायलेट से और इंफ्रारेड लाइट से, ठीक है। बट एक्सरे लेजर, जैसे हम बोला कि हमारा एक्सरे लेजर है, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन आपका क्या होता है, डोमिनेट्स होता है, ठीक है ना। सो बिफोर मूविंग टू द application part, or I'm going to play one video here. So the few applications of laser are as follows: communication, computers, industry. So laser are being used in communication, इन कंप्यूटर्स फॉर रीडिंग, आपका जो कंप्यूटर में यूज होता है डिस्क रीड करने के लिए। इंडस्ट्री में जो होता है वेल्डिंग, आपका वेल्डिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, कटिंग के लिए। मेडिसिन में होता है डायग्नोस के लिए होता है। आज की डेट में अभी लेजर का लाइट का बहुत जगह यूज हो रहा है मेडिसिन फील्ड में, कैंसर फील्ड में होता है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग में होता है, आई डिसीज के लिए होता है, मिलिट्री एप्लीकेशन में आपको टारगेट शूट करना है, ठीक है, या फिर आपको जो टेररिस्ट होते हैं उसको मारने के लिए, ठीक है। केमिकल एप्लीकेशन, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, लेजर इन फोटोग्राफी। और आपका जो लेजर आपका अभी जैसा हमको पता है कि कोरोना डिसीज चल रहा है, तो जो थर्मल थर्मल जो डिटेक्टर होता है लेजर, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन मोस्ट ऑफ द थर्मल डिटेक्टर जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो लेजर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें आपको देखा है खाली पॉइंटर एक हिट करता है आपकी स्किन पे आता है और वहां से रिफ्लेक्शन जो होता है उसी के बेस पे आपको चेंजेस मिलता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ लेजर। ओके, सो आई एम गोना प्ले वन वीडियो हियर। ओके, सो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी भी इसमें थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि जब हम एटम्स को नीचे से ऊपर भेजते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी चीज होती है हमेशा अपनी ग्राउंड स्टेट में कंफर्टेबल फील करती है। तो एटम आपका नीचे से ऊपर जाता है और वापस कहाँ आता है, आपका नीचे आता है। जैसे अभी हम घर पे अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, कोरोना चल रहा है, ठीक है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये सुरक्षा कवच भी है, ये हमारी मेडिसिन है। तो सभी जैसे हम घर पे अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं, चाहे वर्किंग डेज हो या नॉन वर्किंग डेज हो, घर पे हमेशा अच्छा फील करते हैं। इसी प्रकार एटम भी हमारा क्या करेगा, घूम फिर के वापस कहाँ पे अच्छा फील करेगा, ग्राउंड स्टेट में। रिटर्न उसको कहाँ आना है, नीचे ही आना है, ठीक है। So I'm gonna one play one video here. सागर सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yes, ओके, कैन यू कैन यू सी दिस विंडो, वीडियो वाला? सबको दिख रहा है ये? No, sir. कैन यू सी दिस स्क्रीन? नो? blank No, window. no, sir. No, sir. ओके, अभी अभी दिख रहा है कुछ? No, sir. वीडियो प्ले कर रहा हूँ, अभी दिख रहा है वीडियो? No, ये sir. खुल रहा है, अभी कुछ हो रहा है? कैन यू सी? No, sir. No, sir. No, sir. नो दिख रहा? No, sir. No, sir. अबे ओके ओके, होल्ड ऑन। कैन यू सी इट नाउ? No, sir. Yes. इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 वीडियो? Yes, sir. Okay, I'm Yes, gonna sir. play now. Yes, again. Okay. 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 Listen to it carefully.
साउंड इसमें है क्या? क्या साउंड No, sir. There is no. नहीं आ रहा क्या स्क्रीन? नहीं, स्क्रीन आ रहा है, साउंड है क्या उसमें? साउंड है ना, साउंड तो है यार। उधर आवाज नहीं आ रहा क्या? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आवाज साउंड प्ले नहीं हो रहा सर। हाँ, साउंड का थोड़ा सा इधर से तो मेरे इधर तो आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करिए कि जो उस पर साउंड में है उसको आप बोलते जाइए, ओके है ना, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि वो एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है ठीक है। सो दिस I played this video by the applications of laser. So bloodless surgery. So this application is about to study the liver and lungs. So we are sending here the laser light. You can see here the spot here. Now laser application in eyes. So laser are used to reattach or detach retina as a treatment of eye disease. So in industry, lasers are also used in various sectors of industry, like you can see here in cutting, laser is being used in cutting. You can, yeah, you can make some holes, you can drill or you can cut. You might have seen this type of laser detector in metro or some malls, right? They scan barcode, so they get all the information related with that bar. So business purpose basically. So application of laser in defense and space science. So with the help of laser, you can detect enemy targets if something is going in the space. So you can send some data from one place to another place, radar or satellites. Okay, so these are the most common applications of laser. Okay, so I will also provide this video so you can watch it later, or you can also play it slowly. So is there any doubt till now? No, sir. Okay, so if you have any doubt, you can ask, or I can also talk about little bit optical fiber. सागर सर, जी हाँ, टाइम तो है अपने पास अभी? हाँ 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 अभी टाइम है आपके पास। नो प्रॉब्लम। ठीक है। Okay, so let's start with the I'm going to talk about the fiber optics, because जो लेजर का था वो बेसिक काफी चीज हमने कवर कर ली यहाँ पे। अब इसको आप घर पे जाके पढ़ें और उसको थोड़ा और देखें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ दिख रहा है स्क्रीन तो, स्क्रीन PPT लेकिन PPT शेयर दिख रहा है? नहीं नहीं वो नहीं दिख रहा, पीपीटी नहीं दिख रहा। अच्छा, एक मिनट है। अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now I'm gonna talk about the fiber optics, right? So fiber optics, आपने ये अभी तो फुल स्क्रीन पे नहीं है। ओके, सो फाइबर ऑप्टिक्स में आपने देखा होगा कि आजकल जैसे हम कभी कभी मार्केट में जाते हैं तो आपको एक छोटा सा पोर्ट ऐसा दिखता है जहाँ पे आर्टिफिशियल जहाँ पे चीज़ें होती है, कहीं इलेक्ट्रिक की शॉप पे आपने देखा होगा कि जैसा स्टैंड रहता है उसमें कुछ पाइप्स निकले रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपको टॉप पे कुछ लाइट दिखती है। ठीक है, सो ये आपका होता है फाइबर, जो कि आपने देखा होगा मार्केट में, इसको प्लास्टिक फाइबर होता है ये।
तो फाइबर को भी डिफरेंट टाइप के मीडियम से लेके बनाया जाता है मटेरियल को लेके. सो हियर आई एम गोना टॉक अबाउट द फाइबर ऑप्टिक्स. सो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर को बेसिकली होता क्या है तो यहाँ पे हम देखेंगे. सो ऑप्टिकल फाइबर जस्ट लाइक अ मीडियम. ठीक है, जैसे आप दो व्यक्ति बात करते हैं तो उनके बात करने के बीच में एक मीडियम होता है, जैसे एयर आपका मीडियम हो गया, राइट. तो वहाँ पे आपका साउंड सिग्नल ट्रेवल करता है. ठीक है, आपको मान लो वाटर वन प्लेस से अनदर प्लेस भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पाइप यूज करना पड़ेगा. सो द पाइप इज अ मीडियम विच सेंड्स वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो सेम थिंग इज हियर इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इसका ज्यादा यूज होता है. आपको पता होगा तो लाइट प्रोपोगेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट. सो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स में जो ऑप्टिकल फाइबर जहाँ पे स्टडी करते हैं उसको फाइबर ऑप्टिक्स ब्रांच बोलते हैं. ठीक है, फाइबर आपका एक बेसिकली आपका वो हो गया मीडियम टाइप हो गया, और ऑप्टिक्स मतलब जहाँ पे आप इसमें लाइट वाइट को जो भी स्टडी करोगे. सो ऑप्टिकल फाइबर इज लाइक ए मीडियम. ठीक है, जो लाइट को गाइड करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है ना. तो ये आपका एक मीडियम होता है. एक आपका जैसे प्लास्टिक बेस होगा जहाँ पे लाइट लॉन्च करोगे तो वो एक प्लेस से पहले एंड पे आप लाइट लॉन्च करोगे तो आपकी लाइट जाएगी दूसरे एंड पे. ठीक है ना. तो ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है लाइट को ट्रेवल करने के लिए, और इस लाइट के हेल्प से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप वन प्लेस से अनदर प्लेस भेज सकते हो. यू कैन सेंड मेनी इंफॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको भेजना है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेज सकते हो. अभी थोड़ी देर पहले हमने लेजर के बारे में देख रहे थे, तो वहाँ पे लेजर से हम कम्युनिकेशन कर रहे थे, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कर रहे थे. तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आप लेजर को आप ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी भेज सकते हो, जिसके दूसरे बहुत सारे एडवांटेज है. जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है जो वायर्स के थ्रू आती है, ठीक है ना, उसमें आपस में वायर्स के बीच में क्या होता है, इंटरफ्रेंस के चांसेस रहते हैं, क्रॉस टॉक का चांसेस होता है. ठीक है, लॉसेस हो जाते हैं बहुत सारे. ठीक है, तो ये सब चीजें ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होती है. देयर इज अ लॉसेस बट वेरी वेरी स्मॉल, राइट. सो नाउअडेज आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स आपकी देखी होगी आपने कहीं इंस्टॉल हो रही है. ठीक है, और आपको टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी चीजों के लिए ऑप्टिकल फाइबर आपको धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपको ऑप्टिकल फाइबर ही दिखेंगे सब जगहों पे. ठीक है ना. तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं कि इसका कैसे बनता है, इसका अंदर का ज्योमेट्री क्या होता है. ठीक है ना. सो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अब ये हमारा है स्लाइड नंबर 29. सो व्हाट एग्जैक्टली ऑप्टिकल फाइबर इज. तो फाइबर ऑप्टिक्स इज ए टेक्नोलॉजी. बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स इज ए टेक्नोलॉजी होती है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी इन गाइडिंग मीडिया, स्पेसिफिकली ग्लास फाइबर, राइट. यहाँ पे प्लास्टिक बेस भी होता है, ग्लास फाइबर भी होता है, तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया अभी ग्लास फाइबर है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी, जो आप लाइट को पास करोगे, लॉन्च करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे इसका दूसरा एक डेफिनेशन का कभी कहीं पूछते हैं एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में. सो ऑप्टिकल फाइबर्स आर ग्लास और प्लास्टिक पाइप्स, राइट. दोनों से मिलके बना सकते हो आप. एज थिन एज ह्यूमन हेयर. ठीक है, यू माइट नो अबाउट द डायमीटर ऑफ योर हेयर. ठीक है, इट इज अराउंड 50 माइक्रोमीटर, राइट. 50 माइक्रोमीटर होता है आपके बालों का. किसी किसी का 40 होता है, किसी का 30 होता है, 70 होता है, इस तरीके से होता है. ठीक है, देट तो ऑप्टिकल फाइबर का साइज भी आपके बाल के जो हेयर होते हैं उसी साइज का होता है. देट गाइड लाइट वेव्स थ्रू देम. Light propagation mechanism in optical fiber is based on the principle of total internal reflection. So यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपकी जाएगी वो TIR के थ्रू जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू. ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि लाइट जो पास होता है ऑप्टिकल फाइबर में वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है. ठीक है, अब इसमें ऑप्टिकल फाइबर का जो ज्योमेट्री होता है वो कैसे होता है. ठीक है, तो आई विल कंपेयर दिस ऑप्टिकल फाइबर विद अ डिस्क केबल. ठीक है, आप सभी के घर में डिस्क होगा, आपने उसके वायर को थोड़ा सा नोटिस भी किया होगा किस तरीके से बना होता है. पहले ब्लैक कलर का उसके ऊपर कवर होता है, फिर एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, फिर प्लास्टिक का क्लेडिंग होता है. ठीक है ना, फिर उसमें कॉपर वायर होता है, सेंटर वायर. ठीक है, सो यू कैन सी हियर जब ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है तो उसके अंदर भी कुछ चीजें ऐसी होती है लगभग. ये आपका होता है कोर. ठीक है, जहाँ से आप लाइट को लॉन्च करोगे, और उसका साइज जो होता है कमर्शियली 8 माइक्रोमीटर होता है. देयर डिफरेंट साइज के भी डायरेक्ट के हिसाब से अलग अलग है, जिसको सिंगल मोड और मल्टी मोड भी बोलते हैं. ठीक है ना. दूसरा होता है इसके अंदर क्लेडिंग होता है. ठीक है ना, क्लेडिंग होता है ऊपर से, ये होता है 125 माइक्रोमीटर का. फिर उसके बाद होता है बफर होता है. ठीक है ना, बफर होता है जो मॉइस्चर से बताता है, और एक जैकेट होता है जो क्रॉस टॉक होने से आपको सेव करता है. मतलब आपका जो अल्टीमेटली आपका सिग्नल है वी विल पास थ्रू दिस कोर, राइट. सो बाकी जो चीजें एक्स्ट्रा चीजें ऊपर है ये आपको क्या करेगी, उसको हेल्प करेगी लॉसेस होने में, लीकेज होने में. ठीक है, सो
we launch the light here at the core, ठीक है. So यहाँ पे कोर का मतलब क्या होता है, क्लेडिंग का मतलब क्या होता है, बफर क्या होता है, जैकेट क्या होता है, इसको हम देखते हैं वन बाय वन. सो ग्लास आर प्लास्टिक विद हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देन द क्लेडिंग, ठीक है. तो हायर इंडेक्स रिफ्रैक्शन का मतलब ये देखते हैं यहाँ पे, तो जो कैरीज द सिग्नल. सो कोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विच कैरीज द सिग्नल और विच कैरीज द इंफॉर्मेशन. जो भी आप इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो, सपोज आपने बोला हेलो और आपने बोला आई एम गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट. सो दिस इज द सिग्नल और इंफॉर्मेशन यू कैन सेंड फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम वन प्लेस टू सेवरल और थाउजेंड और 1 लाख किलोमीटर. जो भी आपको भेजना है आप आराम से भेज सकते हो, ठीक है ना. क्लेडिंग में है आपका ग्लास और प्लास्टिक विद द लोअर इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन देन द कोर. तो क्लेडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना. ग्लास का आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता होगा कितना होता है. जैसे हमको एयर का कितना होता है, यदि पूछूं तो कितना होता है, एयर का 1 होता है, ठीक है ना. और आपका जो वाटर होता है उसका कितना होता है, 1.33. इस तरीके से आपका जो ग्लास ये कोर होता है ग्लास का, इसका भी होता है आपका 1.5, 1.45, 1.5. सो ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है. अब आपको जो हायर और लोअर में डिफरेंस ये है कि जब हम बात करते हैं कि लाइट आपका कहाँ पे जाता है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है. सो जब लाइट आपका रेयर से डेंसर में जाता है, इमेजिन द पिक्चर, इमेजिन द डायग्राम, whenever light goes from higher index medium to lower or denser to rare or rare to denser. First of all, I'm going to talk about the rare to denser. Light always moves towards the normal. जब अब लाइट आपका रेयर से डेंसर में जाता है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ मूव होता है. तो जब लाइट आपका डेंसर से रेयर में जाता है तो लाइट हमेशा क्या होता है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट इज वेरी बेसिक, यू माइट हैव स्टडीड इन योर स्कूल टाइम. सो नेक्स्ट आपका है बफर. व्हाट इज द रोल ऑफ बफर इन ऑप्टिकल फाइबर? सो प्रोटेक्ट्स द फाइबर फ्रॉम डैमेज नहीं हो, कुछ लोड नहीं आया उसके ऊपर, ठीक है. एंड मॉइस्चर से भी इसको सेव करता है. आता है उसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट आता है जैकेट्स होता है, होल्ड्स वन और मोर फाइबर्स इन ए केबल. जैसे हमने देखा होगा, ये आपका होता है कि एक सिंगल केबल में आप एक से ज्यादा फाइबर को देखते हो, डाल दोगे तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. तो इसलिए आपको जैकेट लगाते हैं ताकि फाइबर आपस में क्या होगा, वो टूटे ना और एक साथ में आप ज्यादा फाइबर को डाल सकते हो, ठीक है. टाइप्स ऑफ फाइबर्स. सो प्लास्टिक कोर जो होता है हमारा, अब इसमें कोर क्या किस टाइप से होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए कि ग्लास का होना चाहिए, ठीक है. इसके बेस पे ऑप्टिकल फाइबर्स को अलग अलग टाइप्स दिया गया है. तो टाइप्स ऑफ फाइबर में सबसे पहला होता है प्लास्टिक कोर. तो प्लास्टिक कोर क्या होता है, पॉलीस्टीरीन होता है उसके अंदर, या पॉली मिथाइल वैलेट होता है, या PMMA बोलते हैं इसको, विथ प्लास्टिक क्लेडिंग. तो पहला प्लास्टिक फाइबर आपका यदि बनाना हो आपको तो प्लास्टिक का कोर रखना पड़ेगा और प्लास्टिक का क्लेडिंग रखना पड़ेगा, ठीक है. और आपका जो ये मार्केट में होता है उसमें प्लास्टिक यूज होता है. दूसरा होता है ग्लास कोर विथ प्लास्टिक क्लेडिंग, ठीक है ना. यदि आपका ग्लास का कोर आपने यूज किया तो प्लास्टिक की क्लेडिंग आपको यूज करना है, और यदि ग्लास का कोर यूज किया तो ग्लास क्लेडिंग भी आप यूज कर सकते हो. सो टुडे इन द मार्केट you will find this type optical fiber with this type of combinations, ठीक है ना. तो प्लास्टिक से भी फाइबर पॉसिबल है जो हमने मार्केट में देखा है, और ग्लास से भी आपका पॉसिबल है, ठीक है ना. अब इसमें आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा. यहाँ पे कोर जो है उसका साइज, ये डॉट है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो सर्कल है ये हमारा कोर है जहाँ पे लाइट लॉन्च करते हैं. इसका डाया होता है 50 माइक्रोमीटर, और जो क्लेडिंग होता है उसका डाया होता है 125 माइक्रोमीटर, ठीक है ना. तो ये डिपेंड करता है आपका फाइबर किस टाइप का है, सिंगल मोड है या मल्टी मोड है. उसका भी आउटर इसका जो जैकेट है उसका जो साइज होता है वो 250 माइक्रोमीटर है, ठीक है ना. और ये आपका जैकेट होता है. सेकंड आपका होता है ये ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसमें आपका कोर है, क्लेडिंग है, ठीक है ना. जैकेट ये आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू है इसका जो हमने आपको बताया है. उसके बाद जब आपका लाइट आप लॉन्च करते हो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो लेट्स से द लाइट इज, जो आपका लाइट रे है जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एंटर हो रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल इसने बनाया है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका आउटर साइड में क्या है, क्लेडिंग है, ठीक है ना. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल इंटरनल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंडीशन फुलफिल होता है जहाँ पे इंसिडेंट एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है. सो लाइट इन ऑप्टिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. उस केस में क्या होना चाहिए, जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है वो क्लेडिंग से आपके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए. उसी केस में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. इफ the angle of incident is less than critical angle, it means light आपका कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा. if the incident angle is equal to critical angle, मतलब आपका जो लाइट रहेगा वो ऑप्टिकल फाइबर के सरफेस पे आएगा.
तो जैसे आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, लाइट आपका ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आ जाएगा और आपको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट आपको बाहर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है किस एंगल से आप लॉन्च कर रहे हो। तो एंगल प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, ये डिग्री होता है ना, इसकी कमर्शियल लेवल पे देखे तो, ठीक है ना। तो ये इसके लॉन्चिंग के लिए था। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ऑप्टिकल फाइबर है यहाँ पे दिखा है, जो कमर्शियली अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है ना। ये पहला फाइबर है, इस तरीके से ये बंच ऑफ ऑप्टिकल फाइबर से, फिर ये आपके ऑप्टिकल फाइबर से इस तरीके से ये आपको सेफ्टी के लिए, मॉइस्चर के लिए, सबके लिए प्रॉपर अपर वो सब जो हमने बात की थी, जैकेट वैकेट ये सब है। सो ये बंडल होता है बेसिकली, नॉट अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर, ये जैसे कलेक्शन और बंच ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, जहाँ से आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो, ठीक है ना। ओके, सो क्रिटिकल एंगल एंड एक्सेप्टेंस एंगल, जो मैंने बात किया आपको कि लाइट आपका लॉन्च होता है जब आपका हायर इंडेक्स से लोअर इंडेक्स की तरफ, तो क्रिटिकल एंगल से यदि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा होता है तो आपका TIR होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका एक्सेप्टेंस कोन का यहाँ पे रोल प्ले होता है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जब आपका देखो इस वाले सेकंड वाला जो फिगर है, तो उसमें लाइट जो लॉन्च हो रही है उसके लिए मैक्सिमम कौन सा एंगल है, ये होता है एक्सेप्टेंस एंगल। इसी एंगल के अंदर आप लाइट को लॉन्च कर सकते हो। तो लाइट रेस इन दिस एंगल आर गाइडेड इन कोर, ठीक है ना। फिर लाइट आपका अंदर गया है, ये TIR को फॉलो करके बाहर निकलेगा, ये कोर हो गया, ये क्लेडिंग हो गया, तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये एक्सेप्टेंस कोन होता है, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस कोन क्या होता है, तो एक्सेप्टेंस कोन होता है द लाइट रेस कंटेंट विद इन द कोन, light rays contained within the cone having a full angle to theta maximum जो होता है are accepted and transmitted along the fiber. So this cone is therefore known as acceptance cone. So here I use one term called numerical aperture. Numerical aperture is very very important term in case of optical fiber. So what do you mean by numerical aperture? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में न्यूमेरिकल अपर्चर का light gathering capacity of an optical fiber is called numerical aperture. कितना लाइट को वो आपने लॉन्च किया और कितना गैदर करता है, हो सकता है कुछ लीकेज हो गया, कुछ आपका लॉसेस हो गया, सही से एंगल नहीं था, ठीक है ना। तो लाइट गैदरिंग आपका कैपेसिटी जितना होगा ऑप्टिकल फाइबर का, न्यूमेरिकल अपर्चर भी उससे पता करते हैं कि वो फाइबर कितनी लाइट को गैदर करता है, ठीक है ना। लाइट गैदरिंग कैपेसिटी बेसिकली। सो इसका डेफिनेशन भी आता है कभी कभी और ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। तो आप फाइबर बनाने के लिए आपको मटेरियल्स क्या क्या होंगे। सो व्हाइल सिलेक्टिंग अ मटेरियल फॉर ऑप्टिकल फाइबर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मस्ट बी सेटिस्फाइड, ठीक है। देयर इज सम कंडीशन और जैसे कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी वो ऑप्टिकल फाइबर आप बना सकते हो। तो क्या क्या होना चाहिए उसके लिए, इट मस्ट बी पॉसिबल टू मेक ए लॉन्ग थीन एंड फ्लेक्सिबल फाइबर्स फ्रॉम द मटेरियल, ठीक है। लॉन्ग होना चाहिए, थीन हो और फ्लेक्सिबल फाइबर्स हो। फॉर द फाइबर टू गाइड लाइट एफिशिएंटली, गाइड करने के लिए मटेरियल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए टू पर्टिकुलर ऑप्टिकल वेवलेंथ, ठीक है। थर्ड आपका उसका जो चीज ध्यान रखना होती है मटेरियल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस फॉर द कोर एंड क्लेडिंग मस्ट बी अवेलेबल। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कोर से आप लाइट लॉन्च कर रहे हो, उस केस में लाइट आपका TIR कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो ग्लासेस एंड प्लास्टिक सेटिस्फाई द अबव रिक्वायरमेंट। ये आप दोनों मटेरियल लोगों ने स्टडी किया तब जाके उनको मालूम पड़ा, उन्होंने पाया कि सिर्फ ग्लास और प्लास्टिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी ये कंडीशन तीनों फुलफिल करते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स आर बीइंग यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑप्टिकल फाइबर। जो मैंने आपको पहले बताया था कि यदि ग्लास का कोर है तो प्लेटिंग भी उसी का होगा, ग्लास का कोर है तो प्लास्टिक का प्लेटिंग ले सकते हो, प्लास्टिक कोर है तो प्लास्टिक का प्लेटिंग ले सकते हो, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ओके, types of optical fiber में the optical fibers are classified into two categories. The optical fibers are classified दो कैटेगरी में उसको बोला जाता है। पहला होता है नंबर ऑफ मोड्स एंड सेकंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होता है, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑप्टिकल फाइबर कितने पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके घर से कॉलेज जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ऐसा तो ये नहीं कि सिर्फ एक ही रास्ता होता है जहाँ पे आप कॉलेज जाते हो। इस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर भी बहुत सारे पाथ प्रोवाइड करता है लाइट को ट्रेवल करने के लिए अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आप कॉलेज से जाने के 3-4 रास्तों से आप जा सकते हो, इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में भी बहुत सारे पाथ अवेलेबल होते हैं लाइट को अंदर जाने के लिए, एक वन प्लेस से अनदर प्लेस, ठीक है ना।
वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कभी क्या होता है कि कुछ ऑप्टिकल फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसके कुछ अलग एडवांटेज है, और कहीं कहीं पे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन्स सेम, ठीक है, जो उसकी पूरी डायमीटर जब तक खत्म नहीं हो जाती। तो नंबर ऑफ मोड्स के हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर को 3 भाग में डिवाइड किया है, सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। और मल्टी मोड को वापस 2 भाग में बांटा गया है, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो सिंगल मोड फाइबर जो होता है, इट हैज स्मॉलर कोर डायमीटर जो 5 माइक्रोमीटर होता है, उसका जो क्लेडिंग होता है 70 होता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, ज़्यादा आपको इसमें इंफॉर्मेशन आप लॉन्च कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। मल्टी बोर्ड में क्या होता है, इसका जो कोर होता है वो 40 का होता है, 70 माइक्रोमीटर का क्लेडिंग होता है। तो देयर इज अ सिग्नल डिग्रेडेशन ड्यू टू मल्टी मोड डिस्पर्शन। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आता है वो सेम रहता है। देयरफॉर मल्टी मोड फाइबर इज नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें डिस्पर्शन होता है। आपका ऑप्टिकल पल्स आपने मान लो 50 नैनोमीटर का भेजा है, तो वो आगे जाके 70-80 हो जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी उसमें लॉस होगा और आपस में इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। द लाइट सोर्स इज एलईडी, द फैब्रिकेशन ऑफ मल्टीपल फाइबर इज लेस डिफिकल्ट एंड सो द फाइबर इज नॉट कॉस्टली, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें होता है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर और दूसरा होता है ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो इसमें यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। सो दीज फाइबर्स हैव ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ कोर साइज, 50 से 200 माइक्रोमीटर के फाइबर होते हैं इसके अंदर आते हैं, और डायमीटर ऑफ क्लेडिंग इज अराउंड 150 माइक्रोमीटर। इसके एडवांटेज क्या क्या है, तो रिलेटिवली इजी टू मैन्युफैक्चर, आसानी से बना सकते हो, चीपर देन अदर टाइप्स, लार्जर लेयर न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब लार्जर लेयर न्यूमेरिकल अपर्चर मीन्स लार्जर, आपका लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा। दे हैव लॉन्गर लाइफ टाइम्स देन लेजर डायोड। डिसएडवांटेज क्या है, लोअर बैंडविड्थ होती है, हाई डिस्पर्शन होता है एंड स्मेयरिंग ऑफ सिग्नल पल्स। ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, यदि इसमें क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी कोर से ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिससे क्या होता है सिग्नल का डिस्पर्शन नहीं होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने 5 इन्फॉर्मेशन यदि एक एंड से भेजी है, तो आपको दूसरे एंड पे 5 इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे मैंने बोला हेलो, तो पहले आपको हेलो मिलेगा, दूसरा मैंने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, ठीक है। तो आपको वो सिग्नल से इस फॉर्म में अलग अलग आपको 1 बाय 1 सुनाई देंगे। बट आपका जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका सेम न होने के कारण आपको ये इन्फॉर्मेशन मिक्स हो जाएगी कि वॉच आपने मूवी बोला है, कॉलेज का बोला है, मार्केट बोला है, तो आपको सुनाई नहीं देगा सही से कि आप एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हो, ठीक है ना। So as a result, light rays near the edge travel faster than the light rays near the center of the core. Center of the core. Advantage क्या क्या है, डिस्पर्शन कम होता है ग्रेडेड इंडेक्स में, bandwidth is greater than step index multimode fiber, easy to couple with optical source, and disadvantage क्या, थोड़ा सा महंगा रहता है, ये एक्सपेंसिव होता है, and very difficult to manufacture. So you can see here in the slide 37, the left figure, left आपको जो फिगर दिखा रहा है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिकल फाइबर और कैसे इसमें इंफॉर्मेशन जाती है। तो पहला आपका सबसे बॉटम से स्टार्ट करते हैं, सिंगल मोड फाइबर। इसमें कोर का साइज आपको पता है 10 माइक्रोमीटर है, क्लेडिंग का इतना होता है। उसके बाद आपका रिफ्लेक्ट इंडेक्स प्रोफाइल ये इस तरीके से ज़्यादा है, आगे की तरफ एरो की साइज है और ये कम होते जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने सपोज ये वाला सिग्नल लॉन्च किया है सिंगल मोड फाइबर में, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। आपका राइट साइड में पिक्चर देख सकते हो, ग्रीन सीधा जा रहा है विदाउट एनी, आपका क्या हो रहा है, सिंगल पाथ ये प्रोवाइड करता है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको ज़्यादा यूज करते हैं। ग्रेड इंडेक्स फाइबर में क्या है, ग्रेड इंडेक्स के बाद ये स्टेप इंडेक्स फाइबर पहले देखते हैं हम। तो मल्टी मोड को 2 भाग में डिवाइड किया है, स्टेप इंडेक्स फाइबर में और ग्रेड इंडेक्स फाइबर में। तो मल्टी मोड का जो डायमीटर आपको पता है, कोड आया कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्लेडिंग का कितना है, और इंडेक्स का प्रोफाइल आपका इस तरीके से। तो आप सपोज आपने ये सिग्नल भेजा है, तो सिग्नल के प्रोपोगेशन का डायरेक्ट क्या क्या अलग अलग पाथ कौन सा है, पहला रेड है, उसके बाद ब्लैक है, और फिर ये ग्रीन है, ठीक है ना। तो आपको आउटपुट पल्स कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में ये ग्रीन सिग्नल जो जा रहे हैं आपस में, यहाँ पे आउटपुट में लाइट रेस क्या हो रही है, एक एरो यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, मतलब ये मिक्स फॉर्म में आ रही है। सो यू वॉन्ट बी एबल टू लिसन क्लियरली, जो मैसेज आपको भेजा है वो आप यू वॉन्ट बी एबल टू लिसन इट क्लियरली। बट इन केस ऑफ ग्रेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कोर से क्लेडिंग की तरफ क्या होता है, घटता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंड करोगे वो आउटपुट में आपको प्रॉपर सुनाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका घटेगा, मतलब एन का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ऊपर से जो सिग्नल जा रहा है वो भी उसी टाइम पे वहाँ पे आउटपुट में जाके मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो
तो सपोज आपने यहाँ पे कोई सिग्नल ये लॉन्च किया है इस टाइप का ग्रेडियंट डिस्क में, तो आउटपुट में आपको ऐसा ही मिलेगा। पहला आपको ये ब्लू वाला है, दूसरा आपके इसके ऊपर से है, तीसरा वाला रेड वाला है। तो इनका स्पीड भी, इनका पहुंचने का टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है मतलब स्पीड क्या होगा इसका, वही रहेगा, है ना। ऊपर जैसे जैसे जाओगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका बदलेगा, चेंज घटेगा बेसिकली। तो यहाँ पे इनका अराइवल टाइम जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। सो विल गेट ऑलमोस्ट सेम सिग्नल और सेम मैसेज जो आपने भेजे हैं, ठीक है ना। आउटपुट में आपको इस तरीके से ये सिग्नल आपको मिलेंगे और आपको यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं होंगे। तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे थोड़ा डेरिवेशन है और हमारा टाइम भी। सागर सर, टाइम जो है वो हो चुका है। ओके, सो आई वाज थिंकिंग टू प्ले वन वीडियो, और क्या स्टॉप करें, क्या कंटिन्यू करें? हाँ, क्योंकि 7 बज चुका है, मोस्टली टाइम इज ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। और Okay, so this was about the laser and fiber optics. There are also more things in it in the optical fiber. Okay, so किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे बाद में चैट करके। Okay, thank you from my side. ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर नाइस टॉक। 1 मिनट के लिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अभी तक के जो लेक्चर्स हुए हैं टोटल, अभी तक जो है वो 8 लेक्चर हो चुके हैं 2 दिन में। इन 2 दिनों में जो 8 लेक्चर्स हुए हैं, इनकी जो है रिकॉर्डिंग यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है और वो यूट्यूब पे पूरा डल चुका है। मैं उसकी लिंक सेंड कर रहा हूँ यहाँ आप सभी को, ठीक है। ये लिंक जो है वो मैं आपको भेज रहा हूँ सभी को। ये लिंक आप यूज कीजिए और इससे आप पुराने जितने भी लेक्चर्स है वो सभी आप देख सकते हो। ये लिंक अभी मैंने भेजा है, इसको आप एक बार ओपन करके देख लीजिए ये ओपन हो रही है नहीं। अगर नहीं होती है तो फिर इसको दूसरी हम लिंक भेजेंगे, लेकिन जहाँ तक है इससे ओपन हो जाएगा। इसमें सभी लेक्चर्स है, 7 लेक्चर है 8 में से टोटल। और आप जितने भी है वो, अगर 100 की हमारी लिमिट है, लेकिन उसके बावजूद हम ये चाह रहे हैं कि ये पूरे लेक्चर्स जो है, लगभग 2700 लोगों ने ये जो है लेक्चर्स पे रजिस्ट्रेशन किया है। बट हम उतनी फैसिलिटीज तो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हम ये जरूर कर पा रहे हैं कि जितने भी लेक्चर्स है वो यूट्यूब पर जो है आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। और आप सभी लोग यूट्यूब जो चैनल है, ठीक है, उसे सभी सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि वहां पर से आप जो है लगातार अपडेटेड रहेंगे कि नया वीडियो जो है वो कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं है, ये सब आप पूरा देख पाएंगे। तो पूरे दिन भर के जो भी है वो इवनिंग में आपको जो है पूरा मिल जाएगा। इस वाले लेक्चर को छोड़कर बाकी सभी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग के वीडियो लेक्चर्स आपको उपलब्ध करा दिए गए। इवन आदित्य सर का लेक्चर भी उसमें अपलोडेड है। ओके, हाँ, मैं वीडी श्रीवास्तव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ही विल कंक्लूड द सेशन। एक बार और लिंक भेज देता हूं मैं, कुछ लोगों ने बोला है कि लिंक भेजने का। इसमें ड्राइव में भी है ना, ये गूगल ड्राइव में। तो कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइए कि आपके लिए ये जो लेक्चर सीरीज है वो कितनी हेल्पफुल हो रही है, क्योंकि ऑल प्रोफेसर आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। ओके, आपका टेस्ट भी जो है वो कल जो है हो सकता है आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। तो टेस्ट जब होगा शायद दिन में जो है आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीडी श्रीवास्तव सर को, प्लीज सर। अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने शायद म्यूट कर रखा है वहां से। सर टेस्ट वो डाल दो ना, मैसेज कर दो, टेस्ट कर दो। सर ये टेस्ट कैसे होगा? अच्छा, एमसीक्यू टेस्ट होगा। ओके, वी आर प्रिपेयरिंग द प्लेटफॉर्म राइट नाउ। ओके, एज सुन एज पॉसिबल वी आर गोइंग टू गिव, मींस इस तरह से होगा कि जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है 2-4 लेक्चर जो है हो चुके हैं उसके, उसमें सुपर कंडक्टर भी हो चुका है, मैग्नेटिज्म भी हो चुका है, ठीक है। तो और इसके अलावा थिन फिल्म हो चुका है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी भी हो चुका है। तो ये 4 जो लेक्चर है, ठीक है,
वो सभी आपको जो है प्रोवाइड करवा दिए जा चुके हैं, बट बस हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देंगे कुछ, ठीक है, और दैट्स यू हैव टू सॉल्व इन ए टाइम लिमिटेशन, ठीक है, बहुत ही कम समय मिलेगा आपको, और उन कम समय में जो है आपको वो क्वेश्चन जो है क्लियर करना पड़ेगा। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स सर का जी हाँ कल उपलब्ध करा दिया सर, जाएगा टेस्ट। हाँ सर बोलिए। सभी लेक्चर्स का टेस्ट एक साथ होगा या अलग अलग से होगा? सभी लेक्चर्स का अभी और हम थोड़ा उस पर ट्राई कर रहे हैं, बट अभी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का तो हम कल प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है तो एक टेस्ट कंप्लीट टेस्ट भी होगा, ठीक है, और इसके अलावा जो है टॉपिक वाइज जो जो हमने पढ़ाया है वो सभी होगा, ठीक है। हमारा मेन इशू ये नहीं है कि सर्टिफिकेट तो होना है ही इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे ज्यादा जो है लर्निंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है वो ज्यादा देखना ज्यादा जरूरी है। ओके क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि दिन भर में आप कोई ना कोई कोविड का हो गया, कुछ हो गया, कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट तो जरूर मिल रहा है, बट वी गेट ए गुड नॉलेज एज वेल एज विद गुड एप्लीकेशन नॉलेज। ओके ठीक है। यस सर। हाँ डिफिकल्ट नहीं है, टेस्ट आपको देना ही होगा, क्योंकि लर्निंग आपने जो पढ़ाया है वही टेस्ट में पूछेंगे, तो कोई इतना वो आप उसको मत कीजिए। आप जो लेक्चर्स है आप उसको अच्छे से देख लीजिए, वो लेक्चर जितने भी है आपने 8 लेक्चर्स जो है उसमें से सॉलिड स्टेट अगर पूछा जा रहा है तो उस लेक्चर्स को आसानी से पढ़िए और उसी में से पूछा जाएगा। ओके सो नाउ वी कैन विडी सर आप इसको प्रोसीड कीजिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल। we will give tomorrow morning किस तरह से टेस्ट होगा, क्या प्लेटफॉर्म होगा। ओके नाउ वी आर परफॉर्मिंग दैट। ओके कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या प्लेटफॉर्म होगा क्या है ना, वो हम लगभग 11-12 बजे के करीब जो है हम बता देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप से बता देंगे अगर आप ग्रुप यहाँ पे ऐड नहीं भी हो पाएंगे तब। ओके सर प्लीज विडी सर श्रीवास्तव सर, he is a patron of our this IAPT lecture series, and on the behalf of organizing committee we are requesting to Dr. BD Srivastav sir. Right now he is he is a professor of PG College Dhar. He is a very senior professor, as well as he is very expert in technology. Basically that's we are going to do right now. He is very helping to us because we all are young, and right now he is also young with us, but the knowledge he has, it is just like a very young person. Okay, so I'm requesting to BD Srivastav sir, please tell us about this lecture series as well lectures of Dr. Jiten Solanki sir. Thank you very much sir. Thank you, sir. सर लेफ्ट नहीं होगा सर सागर सर। हाँ सर शायद लेफ्ट हो गए या नहीं है, इसमें नहीं दिख रहा। एक मिनट रुको सर, 1 मिनट। नहीं है सर। हाँ सर, अरे इसमें से आप हट गए, जल्दी से आए, वो मैं बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हाँ अरे वो आपके लिए तो रुके हुए थे हम कि मतलब एड्रेस करेंगे। हाँ हाँ 1 minute he is coming. Accidentally he left from the group. और आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप अभी, सभी अपने माइक से पूछ सकते हैं। Do not leave. You can ask anything in this duration. Because he is a very senior. Do not leave meeting because he is a very senior person. He is a professor and a very active member of the IAPT, right? So we must give respect. We shouldn't go to leave the meeting.
Okay, so meanwhile I can play one video, so it will be also interesting. This is more interesting for actually for this lecture is fiber optics lecture is more Okay, right useful now for. he came. Right now, BD Srivastav sir came. Okay, we lots of things I told about BD Srivastav sir during that time, but he was not there. Sorry, sir. He will talk something about IIPT as well as this conference. Okay, thank you, sir. Hello. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. आ रही सर, आ रही है। Okay. हाँ, देखिए पार्टिसिपेंट्स भी कुछ हमारे हैं और हमारे सारे लोग हैं ग्रुप के। Yes, sir. ग्रुप के सभी लोग हैं अवेलेबल? हाँ हाँ, Yeah, सभी तो चलिए नहीं ठीक। है लेकिन तो हाँ हाँ चलो, तो अपन जो मूल रूप से बात करना चाहते हैं, पार्टिसिपेंट तो है तो कोई बात नहीं, उनके सामने भी कर लेते हैं कि टेस्ट के और इसके संदर्भ में मेरे ख्याल से गूगल फॉर्म डेवलप करके इनको दे दिया जाए तो इनकी सहूलियत से भर के दे देंगे ये। क्या हुआ सर? सुनाई नहीं दिया। हेलो। मैंने सब्जेक्ट वाइज गूगल फॉर्म, हेलो, हाँ हाँ मैंने हाँ हाँ। सब्जेक्ट टॉपिक वाइज गूगल फॉर्म क्वेश्चंस तैयार करके अपन उसके लिंक इनको प्रोवाइड कर दें, है ना? ओके, तो उसके ऊपर वो आंसर दे देंगे। ओके ओके ओके, नो ठीक है ना? ओके। तो वो टेस्ट वाला काम हो जाएगा। जी 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 सर, हाँ ओके। इसमें कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, बढ़िया, अच्छा है। ये हम क्योंकि कल कर सकते हैं। क्योंकि सारे लोग कहूट पे नहीं जा सकते, हम्म। लेकिन सभी लोग कहूट पे नहीं जा सकते जो मैंने सोचा है ना। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो देयर। हेलो। ओके। हाँ स्टूडेंट्स आर हाँ, हियर तो उनको अराउंड भी 50। ओके, सो ठीक है। सर मीटिंग करते हैं अपन यहाँ पे, अभी आप देख लीजिए, कंक्लूड करके थोड़ा सा मीटिंग करते हैं। हाँ, कुछ आपको पूछना हो तो बता दें, आप क्या पूछना है? स्टूडेंट कुछ भी पूछना चाहते हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, अपना माइक ऑन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर इंटरेक्टिंग टू ऑल पीपल्स। ओके, तो नो, बेसिकली ये यूजी पीजी के स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो हम बिल्कुल इंटरेक्ट करना चाहते हैं कि यूजी पीजी के स्टूडेंट जितना इंटरेक्ट कर सकते हैं उतना करें। ठीक है, तो अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो 2 मिनट में आप पूछ लीजिए। ओके सर, जो टेस्ट है वो सिर्फ सॉलिड का है या अब तक जितने भी सब्जेक्ट लेक्चर्स हुए वाइज सबका होगा, है? सब्जेक्ट वाइज होगा ये टेस्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज ये टेस्ट ओके लिया जाएगा। सर, तो फिर कल बस सॉलिड का है? हाँ, कल जो है वो सॉलिड का जो है मोस्ट प्रोबेबली होगा। ठीक है, टेस्ट ओके सॉलिड सर। का होगा। ओके, तो लेजर जो का अब अभी तक दो कंटिन्यू सर कंटिन्यू। जो अब तक 2 लेक्चर्स लगे हैं सॉलिड के, बस वो लेक्चर्स नहीं पढ़ने नहीं हैं, नहीं, उनमें से 2 ही नहीं, 4 लेक्चर लगे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी भी है उसमें। ओके, ओके 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 सर। हाँ, ओके 4 सर, थैंक यू लेक्चर्स है, सर। 4 लेक्चर्स के अकॉर्डिंग होगा टेस्ट। ओके सर। सर लेजर के 2 लेक्चर और होंगे अभी। लेजर लेजर का नहीं सिस्टम के होगा ऊपर 2 टेस्ट का? लेक्चर और होंगे, तो उसके बाद हम टेस्ट लेंगे लेजर का। ठीक है, अच्छा, कल जिनके Yes, sir. लेक्चर है उनका एक स्मॉल थोड़ा सा हम बता देते हैं। कल अर्पणा अग्रवाल, डॉक्टर अर्पणा अग्रवाल, वो जो है लेजर फिजिक्स पे अपना टॉक देगी, और मतलब उनका काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है। उन्होंने अपना पोस्ट डॉक जो है वो सिंगापुर से किया है, और इसके अलावा उन्होंने 2 पोस्ट डॉक किए हैं, IIT मुंबई से किया है। ठीक है, सो सी आल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर एट खंडवा। ओके, तो इसके अलावा भी जो है रवि राठौड़ जी है, जो कि लगभग 4 से 5 बार जो है नेट क्वालिफाई है, CSR नेट। ओके, तो हियर वी ऑल आर फैकल्टीज आर वेल क्वालिफाइड एंड वेल एजुकेटेड। Okay, so please, whatever with the questions you have, you can ask in group also as well as here. Okay, sir, तो finally क्या करना? Dr. Arpana is going to talk on laser systems, so you must attend. That laser system is also very important according to your syllabus. Statical mechanics कल होगा, statical mechanics, laser system, और plasma physics also there. Okay, lots of people find difficulty in plasma physics. So Mr. Pradeep, sir, he will take the plasma physics also, and another guy is who's that? Quantum mechanics also there, I think. Okay, so quantum mechanics जो है वो भी होगा। ठीक है, so these are the whole are the
lectures are So please available. tell me the complete syllabus for the test. सिलेबस टेस्ट जो है वो जो 4 लेक्चर हुए हैं वही टेस्ट है आपका, उन्हीं में से आएगा और कुछ अलग नहीं आएगा। नॉर्मली लिख लीजिए मैग्नेटिज्म, सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, और जो नेत्राम करो सर के 2 थिन फिल्म और नैनो टेक्नोलॉजी। और इसको अच्छे से पढ़ो आप, क्योंकि आपके सिलेबस के ही टॉपिक्स है सभी, तो आपके एग्जाम एमपी के स्टूडेंट कितने हैं? एमपी के स्टूडेंट जितने स्टूडेंट है एमपी के, हाँ, उन्हीं के सिलेबस के लेके ये हमने सीरीज चालू करी है सर की गाइडेंस में, श्रीवास्तव सर की। तो आप सभी, हमारा मेन पर्पस ये था कि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन में सभी है अभी घर पे, कॉलेज वालेज कोई लग नहीं रहे। तो आप इसको जो भी वीडियोस है उसको देखो, समझो, मतलब आपकी एग्जाम की तैयारी हो रही है एक तरीके से। ओके सर। बीडी श्रीवास्तव सर, आप फाइनल कर दीजिए अब जो भी है। फाइनल ये है कि पहले अपने लोग जो हों, तो आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए टेस्ट के लिए गूगल फॉर्म में क्या दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी डिसाइड कर लेंगे। मेरे ख्याल से वो डिसाइड कर ले, वो फॉर्म के लिंक इनको दे दे, ग्रुप पे डाल दे, तो लोग अपने टेस्ट देते रहेंगे। ओके, हाँ, ठीक है, जी सर, सही है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ। तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। हाँ, दूसरे ठीक है। सभी लोग कहूत से परिचित नहीं है ज्यादा, है ना? काहूत में सर कुछ लिमिटेशंस भी है, 50 लोगों के लिए ही हाँ होता है। हाँ, तो इसलिए उसमें दिक्कत है, और मेरे ख्याल से गूगल फॉर्म बना के देने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, हाँ, नहीं हाँ, दिक्कत है। हाँ, हाँ। तो गूगल फॉर्म बना के ही अपन दे दें, और उसके अकॉर्डिंगली अपन उनको सबके टेस्ट कर देंगे, ले लेंगे जो देना चाहे, है ना? जी सर, जी बेटर सर। रहेगा। हाँ, सही तो है। ये इसको फाइनल समझे हुए, तो इसी हिसाब से सब लोगों को मैसेज कर दे कि वो अपने कुछ 10-10, 12-12, 15-15 ऑब्जेक्टिव टाइप। हाँ, ओके, ठीक है सर। ठीक है, वी विल वो कर लेंगे प्रोवाइड सर। द ओके प्लेटफॉर्म। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल Excuse me, स्टूडेंट। ओके, हाँ, पूछ लीजिए। थैंक्स टू ऑल Excuse me, पार्टिसिपेंट्स। हाँ, बोलिए, जल्दी से बोलिए। सर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना कुछ टॉपिक्स काफी डिफिकल्ट हैं, जैसे 8055 आर्किटेक्चर वगैरह। माइक्रो तो सर प्रोसेसर रवि माइक्रो राठौर सर, प्रोसेसर। हाँ, रवि राठौर सर जो है वो शायद माइक्रो प्रोसेसर ले सकते हैं, लेंगे शायद। ठीक है, और एक बाकी और हम देखते हैं, इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर रवि राठौर सर लेंगे जहाँ तक। सर 20th मई के बाद भी कुछ हो सकता है, मतलब अगर किसी को कोई डाउट हो तो कुछ बिल्कुल, provide देखिए, करवा सकते ये ग्रुप जो बने भी है वो कोई ऐसा नहीं है कि केवल टेम्पररी है। ठीक है, इट इज नॉट टेम्पररी। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो तो हम उसके ये लेक्चर सीरीज होने के बाद में भी जो है वो आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये केवल 6 दिन का ही है। ठीक है, वी विल प्रोवाइड ऑल लेक्चर्स। ओके, इसके अलावा अगर आप ज्यादा लोग बोलेंगे कि हमें लाइव सेशन में ये पढ़ना है, तो वी आर टुगेदर टू डू ऑल थिंग्स। ओके, बिल्कुल आप ये नहीं सोचिए कि केवल 6 दिन का ही है ये प्रोग्राम। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, so finally we are going to complete the session. Okay, thank you very much to all students. कल जो है हम मिलते थैंक्स हैं। टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। ओके, ओके, थैंक यू। बाय, टेक केयर, बाय।